हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप यू ऑल आर वंडरफुल एंड एब्सोल्युटली फाइन। दोस्तों, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इस चैप्टर के थर्ड वीडियो पर हम पहुंच चुके हैं। आई होप इसके पहले के दो वीडियोस आप देख चुके हैं। अगर आपने अब तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक में जाकर उस वीडियो को पहले देख लीजिए, या फिर चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट में भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए हम आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, जिसमें हम सीखने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला टाइप है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट इन ए रिएक्शन combine to give a single product is called a combination reaction. Example: A plus B, it forms AB, or we can write A plus B plus C, it gives ABC. That means here in this reaction two reactants are taking part in a chemical reaction, and here three reactants are taking part in a chemical reaction, but in both the reaction we can see we get a single product. That means in combination reaction we get single product either on reacting two or more than two products. चलिए कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। नंबर वन रिएक्शन NH3 plus HCl, it gives NH4Cl. Ammonia plus hydrochloric acid, it gives ammonium chloride. Number 2, Mg plus O2, it gives MgO. Magnesium plus oxygen, it gives magnesium oxide. Or third reaction we can see CaO, that is calcium oxide. It is also called as slacked lime. When it reacts with water, that is H2O, it gives CaOH2, that means calcium hydroxide. And again heat is released, but this is not a product. Okay, product is this is the energy which is released during this chemical reaction. We will study more about this particular reaction in next video also. Okay, so these are the three main examples of combination reaction. Here we can see that when two or more than two reactants combine together, we get a single product. That means one and only one product. Such type of reaction is called as combination reaction. Second type of chemical reaction is decomposition reaction. Decomposition means breaking. So the chemical reaction in which two or more products are formed from a single reactant is called a decomposition reaction. That means we can say this decomposition reaction is exactly opposite to combination reaction, because in combination reaction we get a single product, and in decomposition reaction we have a single reactant, but it get decomposed or break down into two or more products. Let's see some example of decomposition reaction. So in general we can write that AB is a single reactant, and after decomposition we get two products, that is A plus B, or we can say that ABC is a single reactant, but after decomposition we get three different products, that is A plus B plus C. So this is a type of decomposition reaction. Now let's take some other example of decomposition reaction. चलिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। नंबर वन, C12H22O11, that means sugar. When sugar is heated, it get decomposed into carbon and H2O. आपने देखा होगा कि अगर शुगर को हम बर्न करें तो कुछ देर बाद जब उसमें से जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाता है, और जिस यूटेंसिल में वो शुगर होती है उसका कलर चेंज हो चुका होता है, कुछ ब्लैक कलर का सब्सटेंस हमें मिलता है।
वो ब्लैक कलर का सब्सटेंस ही होता है कार्बन। तो इस तरह से जब शुगर को हीट किया जाता है उसमें से कार्बन और वाटर सेपरेट हो जाता है, कार्बन यूटेंसिल में बच जाता है और वाटर वेपर्स बनकर बाहर निकल जाता है। तो इस तरह से ये जो रिएक्शन है ये भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है H2O2, दैट मीन्स हाइड्रोजन परऑक्साइड। इट इज डिकम्पोज इनटू H2O and O2। तो ये भी एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। हम देख सकते हैं कि दोनों भी रिएक्शन में हमें रिएक्टेंट एक ही दिखाई दे रहा है जबकि प्रोडक्ट जो है वो एक से ज्यादा है। तो इस टाइप के रिएक्शन को डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहा जाता है। कुछ स्पेशल टाइप के भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है, जैसे CaCO3 जिसे हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। व्हेन इट इज हीटेड it get decomposed into CaO, that means calcium oxide, and CO2, that is carbon dioxide gas. Now for the decomposition of CaCO3 high temperature is required. That means CaCO3 get decomposed into CaO and CO2 under high temperature. Because of this high temperature only this decomposition takes place. Such type of decomposition which are takes place due to high temperature, they are called as thermal decomposition, or it is also called as thermolysis. Now one more type of decomposition is like this, there it is called as electrolysis. Electrolysis means like water is decomposed into hydrogen and oxygen in presence of electric current. That means you might have heard or you might have seen that in electric cell, when in acidulated water electric current is supplied, it get decomposed into hydrogen and oxygen. So here above the arrow we can write electric current because it takes place only in the presence of electric current. Because of electric current only this decomposition takes place. Friends, degradation of organic waste, it is also a decomposition reaction. Organic waste get decomposed by microorganisms which are present in soil, and because of that manure and biogas is formed. So this biogas is used as a fuel. So this type of degradation of organic waste, it is also a type of decomposition reaction. Now the third type of chemical reaction is displacement reaction. Now what is displacement reaction? Displacement, that means the reaction in which place of element is changed is called as displacement reaction. But which element's place gets changed? Let's see. The reaction in which place of less reactive ion of element present in a compound is taken by another more reactive element in a reaction by formation of its own ion is called displacement reaction. Let's understand displacement reaction in a more proper way. So here this is one compound AB, this another compound C, and here we get the product AC plus B. That means here this C has taken place of B, and here we get product AC and B is get separated. So why C has taken place of B? Because C is more reactive than B. So in displacement reaction, place of less reactive element is taken by more reactive element. So how will come to know that which element is less reactive and which element is more reactive? हमें कैसे पता चलेगा कि इस रिएक्शन में कौन सा एलिमेंट लेस रिएक्टिव है और कौन सा एलिमेंट मोर रिएक्टिव है? तो इसके लिए दोस्तों हमें रेफर करना पड़ेगा रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज जो है दोस्तों पूरे सीक्वेंस में हमें याद होनी चाहिए, तभी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो कि अधूरी हमें एग्जाम में दी होगी उसे हम कंप्लीट कर पाएंगे। तो चलिए डालते हैं एक नजर रिएक्टिविटी सीरीज पर। तो दोस्तों चलिए देखते हैं रिएक्टिविटी सीरीज क्या है। ये है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल, जिसमें हम अगर इस डाउनवर्ड डायरेक्शन में आते हैं तो रिएक्टिविटी जो है एलिमेंट्स की कम कम हो रही है। मतलब इस रिएक्टिविटी सीरीज में जो एलिमेंट सबसे ऊपर है वो उतना ही ज्यादा रिएक्टिव है, उसके नीचे का एलिमेंट उससे कम रिएक्टिव है। हमें ये जो सीरीज है वो बिल्कुल इसी सीक्वेंस में याद रखना है,
तभी हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कंप्लीट कर पाएंगे, हम बता पाएंगे कि इसमें प्रोडक्ट क्या हो सकता है। तो दोस्तों बहुत ही आसान है इस सीरीज को याद रखना, क्यों नहीं? तो चलिए इसे आसान बना लेते हैं। दोस्तों पहले भी मैंने कुछ अपने वीडियोस में कुछ ट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था जो हम जगह जगह पर अप्लाई कर सकते हैं अपनी स्टडीज को आसान बनाने के लिए। तो आज हम इसी सीरीज को याद रखने के लिए नेमोनिक टेक्निक का यूज करने वाले हैं। क्या होती है नेमोनिक टेक्निक्स? नेमोनिक टेक्निक्स इसका प्रिंसिपल यही है दोस्तों कि हम किसी भी चीज को अगर सीक्वेंस में याद रखना है तो उसे कुछ एक फनी सेंटेंस में कन्वर्ट कर दो। एक ऐसा सेंटेंस जो शायद इलॉजिकल हो, मतलब कुछ नॉनसेंस टाइप का हो जिसमें कोई सेंस ना हो सकता है जिसमें कुछ रियलिटी ना हो और वो बहुत ही ज्यादा फनी हो। लेकिन ऐसी चीजें जो कि अजीबो गरीब होती है वही दोस्तों हमें आसानी से याद रहती है। जो बहुत ज्यादा नॉर्मल होती है वो अक्सर हम भूल जाते हैं, लेकिन जिसमें कुछ खास बात होती है वो चीज हमेशा हमें याद रह जाती है। तो नेमोनिक टेक्निक्स में करना क्या है, तो यहाँ हमारे पास कुछ जो सिंबल्स हैं उसमें कहीं एक ही लेटर यूज हुआ है तो कहीं दो लेटर यूज हुआ है। तो हम अपनी सुविधा के हिसाब से कहीं एक तो कहीं दोनों लेटर को भी यूज करेंगे। उनके प्रोनाउंसिएशन को ध्यान में रखते हुए हम कुछ अलग शब्दों में इन्हें चेंज कर देंगे और फिर उन सभी शब्दों से एक वाक्य बनाएंगे जो कि बड़ी आसानी से हम याद रख पाएंगे। और अगर वो सेंटेंस हमें याद रहता है, ये सिंबल्स अगर हमें पता है, तो हमें वो सीक्वेंस भी याद रहेगा। चलिए देखते हैं कैसे यूज करेंगे हम इस रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने के लिए नेमोनिक टेक्निक। तो दोस्तों यहाँ जैसे के मतलब पोटेशियम, तो हम पोटेशियम का जो प्रोनाउंसिएशन है वो पी है, लेकिन हम पी को यूज नहीं करेंगे। के का प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? क। तो क से हमने एक वर्ड लिया है यहाँ काशी। यन ए मीन्स ना, तो ना से ले लिया यहाँ नाथ, तो एक नाम बन गया किसी का काशी नाथ। सी ए मतलब ये स भी होता है या फिर क भी होता है, तो सी ए हम का ले रहे, सी ए हम का, तो काशीनाथ का। अब यम जी में से हम सिर्फ यम ले रहे हैं। यम का प्रोनाउंसिएशन होता है म, तो म से ले लिया माँ और माँ से बना लिया माली, काशीनाथ का माली। एयल मीन्स अल से बन जाएगा अल आलू, आलू, ठीक है आलू। अल से हमें याद आ जाएगा आलू, आलू को सबने देखा है ना, आलू का चालू। फिर जेडियन मतलब जेड हम यहां से लेंगे, जेड का प्रोनाउंसिएशन ज भी होता है ज भी होता है, तो जरा जरा। यफी में से हम यफ को ले रहे हैं, यफ का प्रोनाउंस होगा फ, तो फ से ले लिया फी के। और पीबी मतलब लेड है, लेकिन पीबी में से हम सिर्फ पी को यूज कर रहे हैं, पी का प्रोनाउंसिएशन होता है प, तो पकाता। और यच का प्रोनाउंसिएशन है ह, तो ह से लिया है। देखिए यहाँ कुछ सेंटेंस बन गया है, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। काशीनाथ कोई इंसान है, हम कंप्लेंट कर रहे हैं कि उसका जो माली है, काशीनाथ का माली, वो आलू जरा फीके पकाता है। नॉनसेंस है पर याद रहेगा क्योंकि फनी भी है। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। अब ये बात काशीनाथ को पता चल गई तो उसे बुरा लग गया, तो ये सुनने के बाद वो बोल रहा है कि कौन है, आगे आओ। सी का मतलब सी यू में से हमने सी लिया, सी का प्रोनाउंसिएशन क भी होता है, तो कौन। एच जी में से फिर एच ले लिया है, हमें याद रखना है कि पहला वाला एच हाइड्रोजन के लिए है और दूसरा जो है वो एच जी के लिए है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, तो इधर एच इधर एच जी नहीं लाना है। पहला जो है वो हाइड्रोजन के लिए है और दूसरा जो है वो मर्क्यूरी के लिए है। फिर एजी में से ए ले लिया, तो आगे। और एयू आओ आओ,
तो देखिए क्या सेंटेंस बन गया, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ। काशी क से के मतलब पोटेशियम, नाथ नाथ से Na सोडियम, का Ca कैल्शियम, माली से Mg मैग्नीशियम, आलू आलू का क्या है Al मतलब एल्यूमिनियम, जरा से Z से जिंक, फीके फीके फ से Fe मीन्स फेरस या फिर आयरन भी हम उसे कहते हैं, पकाता प से लिया Pb मतलब लेड, और है से है H मतलब हाइड्रोजन, कौन से Cu कौन, ठीक है। तो C से हो गया Cu मतलब कॉपर, और है फिर से Hg मर्क्यूरी, आगे ये हो गया सिल्वर और ये हो गया गोल्ड। तो जैसे जैसे हम अप टू डाउन आ रहे हैं, टॉप टू बॉटम आ रहे हैं, रिएक्टिविटी कम हो रही है, ठीक है। तो इस तरह से हम कंपेयर कर सकते हैं कि अगर हमें दिया जाए कि ये Pb है और फिर इधर पूछा है एल्यूमिनियम, तो हमें अगर रिएक्टिविटी सीरीज दी हुई है तो हम पता लगा सकते हैं कि एल्यूमिनियम जो है वो ज्यादा रिएक्टिव है एज कंपेयर टू लेड। ओके, अब ये जो है दोस्तों काशीनाथ का माली आलू, ये जो एलिमेंट्स हैं मतलब KNaCaMgAl, ये जो है ये मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, दीज आर मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट। इसके बाद ये जो जरा फीके पकाता मतलब ZnFePb, ये जो है मिडल रेंज के हैं, मतलब इनसे कम है। और इसके बाद ये जो है ये लीस्ट रिएक्टिव है, दीज आर लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, ठीक है। तो ये हमें याद रखना है, इस तरह से सीरीज हम नेमोनिक टेक्निक से याद रख सकते हैं। आई होप आपको ये अब इजी लग रहा होगा कि इस सीरीज को हम कैसे याद रखें। तो अगर आपको ये पसंद आया है तो आप जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। जरूरी नहीं है कि सेम यही सेंटेंस यूज किया जाए, आप अपनी क्रिएटिविटी यूज करके कुछ और भी सेंटेंस बना सकते हैं। इसमें हम डायरेक्टली एक तो इनके सिंबल्स का प्रोनाउंसिएशन यूज कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए Pb, तो हमने सिर्फ P का लिया है, आप P और B दोनों का ब से भी कुछ और बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा मतलब अपनी क्रिएटिविटी यूज करके जस्ट हमारे लिए कि बस हमें याद रहे, ठीक है। ये कोई हम एग्जाम में तो लिखना नहीं है हमें इस तरह से, बस हमें एग्जाम के समय याद कैसे आ जाए, इसलिए हमें कुछ ऐसी आइडिया लगानी है, ऐसे ट्रिक्स का यूज करना है। तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे। चलिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और जानते हैं कि कैसे ये रिएक्टिविटी सीरीज हमें हेल्प करती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। तो ये एक एग्जांपल है CuSO4 प्लस Fe, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन। तो इसमें Cu ये एक एलिमेंट है और Fe ये एक एलिमेंट है, दोनों भी मेटल ही है। तो हम देखेंगे कि इसमें ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है और कम रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा है। तो इस सीरीज में अगर हम देखते हैं तो ये है Fe और Cu कहाँ है, ये है Cu बाद में आ रहा है, Fe पहले आ रहा है। इसका मतलब Fe जो है वो मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू Cu। तो Fe जो है वो Cu की जगह ले लेगा और यहाँ तैयार हो जाएगा FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट, और Cu जो है वो अलग हो जाएगा। ठीक इसी तरह सेकेंड रिएक्शन है CuSO4 प्लस Pb। अब यहाँ Cu है और यहाँ Pb है, मतलब लेड जो है वो भी कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये Pb जो है वो Cu की जगह ले लेगा और Cu को अलग निकाल देगा। तो यहाँ तैयार होगा लेड सल्फेट PbSO4 प्लस ये Cu जो है अलग हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ हम देख रहे हैं कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट जो है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट की जगह ले ले रहा है। अब इस रिएक्शन में क्या होगा, Cu प्लस FeSO4, क्या यहाँ पे ये Cu जो है वो Fe की जगह ले सकता है? Cu Fe की जगह ले सकता है? Cu तो लेस रिएक्टिव है और Fe मोर रिएक्टिव है, तो क्या Cu Fe की जगह पर आ सकता है? नहीं, इसलिए यहाँ पर ये रिएक्शन नहीं होगी। हम यहाँ लिख देते हैं नो रिएक्शन, बिकॉज Cu is less reactive than Fe, so it can't take the place of Fe. It can't displace Fe because it is less reactive than Fe. So ये थी दोस्तों डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लास्ट और फोर्थ नंबर का टाइप है दोस्तों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन।
So what is double displacement reaction? The reaction in which ions in the reactant exchange to form precipitate is called double displacement reaction. एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट जो है उनके आयंस एक्सचेंज हो जाते हैं। आयंस मतलब जैसा कि हम जानते हैं किसी भी कंपाउंड में दो तरह के आयंस होते हैं, एक होते हैं कैनायंस और दूसरे होते हैं एनायंस, मतलब पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयन। तो हर एक कंपाउंड में से जो आनायंस और कैनायंस है वो एक्सचेंज हो जाते हैं, मतलब दूसरे कंपाउंड के एनायंस या कैनायंस के साथ वो रिप्लेस हो जाते हैं और जिसकी वजह से नए कंपाउंड्स तैयार होते हैं। और इस रिएक्शन में जो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है। तो इस रिएक्शन को कहा जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए और क्लैरिटी से समझते हैं। मान लीजिए ये एक रिएक्टेंट है AB और दूसरा रिएक्टेंट है CD। तो अगर हम इसमें इस तरह से सेपरेट कर दिए तो ये पॉजिटिव आयन है और ये निगेटिव आयन है। ठीक इसी तरह ये CD में C पॉजिटिव आयन है और D निगेटिव आयन है। तो अब क्या होगा, ये जो A है वो अपने लिए नया निगेटिव आयन ढूंढेगा। इस निगेटिव आयन को छोड़कर वो इस दूसरे रिएक्टेंट में से नया निगेटिव आयन ढूंढेगा, मतलब D को वो लेगा और उसके साथ अटैच होगा और इधर एक कंपाउंड हमें मिलेगा AD। ठीक इसी तरह B जो कि निगेटिव आयन है वो नया पॉजिटिव आयन ढूंढेगा, मतलब वो C के साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ हमें मिलेगा CB या BC। तो इस तरह से हमें जो दो नए प्रोडक्ट मिले हैं वो एक्सचेंज ऑफ आयंस की वजह से मिले हैं। और इस रिएक्शन में ये जो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होते हैं, मतलब कोई भी एक प्रोडक्ट जो है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है ये हम जानते हैं, वो एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस होता है, इनसोल्यूबल सॉलिड होता है। किसी सॉल्यूशन में अगर कोई सॉलिड डिसॉल्व ना हो तो उसे इनसोल्यूबल सॉलिड कहा जाता है और वही प्रेसिपिटेट कहलाता है। तो एक जो प्रोडक्ट है वो सॉल्यूशन के फॉर्म में होगा और जो दूसरा प्रोडक्ट है वो इनसोल्यूबल सॉलिड के फॉर्म में होगा, मतलब कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होगा और इसलिए इस रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन भी कहा जाता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल से इसे और बेहतर तरीके से समझते हैं। सबसे पहले CuCl2 प्लस ट्वाइस Ki। अब इसमें हमें याद रखना है कि यहाँ रिएक्टिविटी सीरीज को यूज नहीं करना है। रिएक्टिविटी सीरीज का यूज सिर्फ सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मतलब जो सिंपली हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जिसे कहते हैं उसी में होता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्सचेंज ऑफ आयंस होता है। मतलब जैसे ये एक रिएक्टेंट है CuCl2, अगर हम इसमें से सेपरेशन करें तो ये कैनायन है और ये एनायन है। हर एक रिएक्टेंट में आपको कैनायन और एनायन मिलेगा। तो अब ये इस एनायन को छोड़कर नया एनायन ढूंढेगा। कॉपर जो है वो Cl2 को छोड़कर नया नेगेटिव आयन ढूंढेगा। तो दूसरे रिएक्टेंट की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ भी सेपरेट करके अगर हम देखें तो K प्लस है और I माइनस है, मतलब नेगेटिव आयन है। तो कॉपर अब इस एनायन को छोड़कर इस एनायन के साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ हमें मिलेगा CuI2। ठीक उसी तरह K जो है वो Cl के साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ हमें मिलेगा KCl। इसमें CuI2 जो है ये प्रेसिपिटेट है और KCl जो है वो सॉल्यूशन के फॉर्म में है। सेकेंड रिएक्शन देखते हैं PbNO3 प्लस ट्वाइस Ki। तो इसमें Pb जो लेड है वो प्लस है, NO3 माइनस है, इसमें K प्लस है, I माइनस है। तो Pb जो है वो I के साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ मिलेगा PbI2। ठीक उसी तरह K है वो NO3 के साथ अटैच होगा और हमें मिलेगा KNO3। तो इसमें PbI2 जो है वो प्रेसिपिटेट है। थर्ड रिएक्शन देखते हैं जो कि आपकी बहुत ही जानी पहचानी होनी चाहिए, NaOH प्लस HCl, मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब बेस प्लस एसिड। क्या तैयार होता है, जब एसिड और बेस रिएक्ट होते हैं तो हमें पता है कि जो प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं साल्ट एंड वाटर। तो इसमें Na और OH का सेपरेशन, इसमें H और Cl का सेपरेशन,
Na पॉजिटिव है, OH निगेटिव है, H पॉजिटिव है, Cl निगेटिव है, तो पॉजिटिव निगेटिव के साथ अटैच हो जाएगा और हमें मिलेगा NaCl, जिसे हम कहते हैं सोडियम क्लोराइड या फिर कॉमन साल्ट। तो ये एक साल्ट है और बाद में ये जो H है वो OH के साथ अटैच हो जाएगा और हमें मिलेगा वाटर, दैट इज H2O। और इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यस, एक और लास्ट एग्जांपल देखते हैं। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस NaCl मतलब सोडियम क्लोराइड। तो इसमें Ag प्लस है, NO3 माइनस है, Na प्लस है, Cl माइनस है। तो Ag जो है वो Cl के साथ अटैच हो जाएगा और यहाँ मिलेगा AgCl जो कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होगा, और NaNO3 सोडियम नाइट्रेट। इस तरह से हमें दो प्रोडक्ट मिल जाएंगे बाय एक्सचेंज ऑफ आयंस। So such reaction where exchange of ion takes place to form new product, that is called as double displacement reaction. तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये रिएक्शंस के जो टाइप्स है वो काफ़ी अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसके पहले के अगर वीडियोस नहीं देखे हैं तो फिर एक बार मैं आपको याद दिला दूँ कि प्लेलिस्ट में ये सभी वीडियोस अवेलेबल हैं। आप चैनल पर जाकर इस वीडियो को सर्च कीजिए और आगे के वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन प्रेस कर देते हैं तभी आपको नए वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता है। तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट्स कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। फिर मिलेंगे हम एक नए और बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, थैंक यू, कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।